So let's start, everybody. We have started with adjustment from the last lecture there, and the adjustment in the last lecture we have seen in terms of bad dates and RDD. बराबर है क्या? कौन सा adjustment देखा था हमने last वाला? Bad dates और RDD, correct? And we have seen a rule that always first we need to deduct bad dates, and we have seen a pro forma for old bad dates as well as new bad dates. Old bad dates means given in trial balance, new bad dates means given in adjustment. Similarly, old RDD means given in trial balance and new RDD means given in adjustment. But along with that, we have seen that always we need to deduct first bad dates, that is new bad dates you can say, and then we need to deduct new RDD. First effect as far as bad dates is concerned, that is always deduct from debtors balance sheet asset side. Second effect, show it into profit and loss account debit side because it is a kind of loss. Am I right? Whereas when RDD is given as a new RDD as an adjustment, then first deduct RDD after deducting bad dates from debtors, that is on the remaining balance, and then show that new RDD into profit and loss account debit side. And I believe we have written the pro forma as well, right? हमने pro forma भी लिखा था कि पहले bad dates minus करना है new bad dates और बाद में new RDD minus करना है. That is what we have seen there. Now let's move ahead and let's see provision for discount on debtor and provision for discount on creditor. इसके बाद हमें क्या देखना है? Provision for discount on debtor and provision for discount on creditor. What does it mean? It simply means that if the customer is going to pay you in a earlier period of time, say you have given a credit period of 2 months to the customer. क्या है? ध्यान दीजिए. अगर आपने कस्टमर को कितना क्रेडिट पीरियड दिया बेटा? 2 months. So you have sold the goods on 15th of June 2022. 15 जून 2022 को आपने गुड्स बेचे और कस्टमर इज सपोज टू पे आफ्टर 2 months. Am I right? Means customer is supposed to pay in August. Am I right? But now you are saying that if the customer will pay within a week's time, then customer will be allowed with extra 2% discount on the data. कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे आप? 2%. क्यों? बिकॉज यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन अ वेरी क्विक फैशन. आपको फटाफट पैसा मिल रहा है, 2 महीना वेट करने की जरूरत नहीं. अभी जो भी पैसा मिलने वाला था उस पे 2 महीने का आप इंटरेस्ट तो सैक्रिफाइस कर ही रहे हो, क्योंकि पैसा कितने महीने बाद मिलेगा? 2 महीने बाद. अब उसके बजाय आपको पैसा कितने दिन में मिलेगा? 8 दिन में. बट फॉर दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग हाउ मच? यू आर सैक्रिफाइसिंग 2% ऑफ द अमाउंट. आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो? 2%. एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है बिजनेस? टू अवॉइड बैड डेट्स. बिजनेस को लगता है और 2 महीने का टाइम अगर दिया तो उसमें और ज्यादा बैड डेट्स होने के चांसेस है, इसलिए अच्छा है कि पहले पैसा रिकवर किया जाए विद इन 8 days, तो बैड डेट्स होने का चांस भी कम रहेगा और फटाफट पूरा पैसा भी रिकवर हो जाएगा. सो दैट इज हाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. कैन आई से इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस? ये एक तरह का लॉस है, क्योंकि डेटर्स को आप बोल रहे हो 2% पैसे कम देना. क्यों? ताकि वो पैसे आपको टाइम पे दे दे, फटाफट दे दे और आपका पैसा रोटेशन में आ जाए. Obviously it is a loss. So first effect, show it on profit and loss account debit side, and second effect, ये किसका loss है? किसकी वजह से loss है? It is a loss because of debtor. So deduct from debtor. Deduct from debtor's balance sheet asset side, but after deducting new bad dates and after deducting new RDD. पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करने हैं, फिर न्यू आरडीडी माइनस करना है. अब जितना पैसा आने वाला है उसमें से 2% डिस्काउंट देना है. न्यू बैड डेट्स मतलब वो पैसा आने वाला है क्या? नहीं. न्यू आरडीडी मतलब पैसा आने वाला है क्या? वो भी नहीं आने वाला. So both these amounts are not supposed to be recovered. So provision for discount on debtor should be deducted after deducting new bad dates and new RDD. याद रखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था नई RDD तभी चार्ज करनी है जब आप पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करते हैं, क्योंकि न्यू बैड डेट्स मतलब वो पैसा तो आने ही वाला नहीं है. दैट इज एनीवेज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड. एम आई करेक्ट? तो नई बैड डेट्स पहले माइनस कीजिए, फिर नया RDD माइनस कीजिए और आखिरी में क्या माइनस कीजिए? देन डिडक्ट व्हाट? That is provision for discount on debtor. So this is what the sequence there. तो आपने शायद उस दिन लिखा था sundry debtors minus new bad dates. देखिए आपके नोटबुक में you already written sundry debtors minus bad dates new. उसके बाद आई वाले बैलेंस पे न्यू RDD माइनस करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस पे आप निकालेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. मतलब ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं. लेट्स से दैट
यू आर सपोज टू रिकवर 20 लाख फ्रॉम योर डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में? सन्ड्री डेटर्स इज हाउ मच? 20 लाख। उसमें से बैड डेट्स आपको दिया है, जस्ट एन अजम्पशन। हाउ मच इज बैड डेट्स गिवन? इज बैड डेट्स इनटू न्यू बैड डेट्स आर ओनली रुपीज 20,000। कितने नए बैड डेट्स? 20,000। बचा कितना अमाउंट बेटा? 19,80,000 लेस आरडीडी से इट इज गिवन 5%। आरडीडी कितना दिया है? 5%। लेकिन कैसा है? ये भी न्यू आरडीडी है। 5% आरडीडी चार्ज करो 19 लाख 19,80,000 पे कितना आएगा? 1,98,000। 10% आएगा, 1 0 काट देंगे तो बराबर है, और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? -99,000 बराबर है क्या? 198 डिवाइडेड बाय 2, 1,98,000 डिवाइडेड बाय 2। ये 1,98,000 कहां से आया बेटा? ये 1,98,000 कहां से आया? कितना बोला आरडीडी? 5%। किसका? बचे वाले बैलेंस का। बैलेंस कितना बचा है? 19,80,000। तो 19,80,000 का आपने पहले कितना निकाला? 10%, 1 0 काट दिया, बचा कितना? 1,98,000। उसको डिवाइडेड बाय 2 किया क्योंकि आपको 5% चाहिए, तो कितना आया? 99,000। अब 19,80,000 माइनस 99,000, हाउ मच इज द बैलेंस? 18,81,000 बराबर है क्या? 1881 बराबर है क्या? 1,000 ज्यादा ऐड करना है। 1 लाख माइनस करो ना सीधा सीधा। 1980 में से 1 लाख गए तो 1880, लेकिन 1 लाख माइनस नहीं करना है। कितना करना है? 99। 1,000 बढ़ा दो, कितना आया? 18,81,000। अब क्या माइनस करेंगे? लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना बोला मैंने परसेंटेज? 2%। ये 2% बोला। रश्मिता बोलो 2% कितना आएगा? 18,81,000 का 2% कितना आएगा बेटा? 1% निकालना है तो किसी भी फिगर के कितने जीरो उड़ाने हैं? 2 0 उड़ाने हैं। 2 0 उड़ा दिया तो बचेगा कितना? 18,810। am I करेक्ट? 18,810। उसका डबल करो क्योंकि ये 1% है। 36,000, 8 8 16, 37,620, 36,620। अब ये माइनस करेंगे, सॉरी, अब ये माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आपका रिमेनिंग बैलेंस आएगा। सो यहां पे 36 के बजाय कितना लिखूं? 37,620। आया समझ में? समझ में आ रहा है क्या बेटा? आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट इज द सीक्वेंस? First deduct new bad dates, then deduct new RDD, and then deduct provision for discount on data. This sequence should not be forgotten. ये एडजस्टमेंट में कहीं पे भी हिला के दिया होगा, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है? पहले नए बैड डेट्स माइनस करना है, फिर नया आरडीडी माइनस करना है, और आखिरी में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। आप पूछेंगे इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे है? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटा, ये तीनों लॉसेस है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमने और एक प्रोफार्मा देखा था, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, वो तो प्रोफार्मा अलग है। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा अलग से लॉस बोल के बताइए। ये लॉस है या नहीं है? ऑब्वियसली लॉस है, तो इसको अलग से बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आया बेटा मैंने क्या सीक्वेंस बोला? सो इफ इन अ क्वेश्चन RDD, bad dates and provision for discount on data, all adjustments are given. First we need to deduct new bad dates, then we need to deduct new RDD, and then finally we need to deduct provision for discount on data. और ये सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, अमाउंट भी वैरी करता है। देखो पहला अमाउंट था 20 लाख, हमने नए बैड डेट्स 20 लाख से माइनस किए, लेकिन RDD किस पे चार्ज किया? 20 लाख पे किया या बैड डेट्स माइनस करने के बाद चार्ज किया? बैड डेट्स माइनस करने के बाद चार्ज किया। सो 20 लाख माइनस 20,000, 19,80,000 का हमने 5% निकाला फॉर आरडीडी। वराज 1980 से जो हमने बैड डेट्स न्यू आरडीडी माइनस किया 99,000 और बैलेंस आया 18,81,000, इस पे हमने चार्ज किया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। मतलब सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो सम गलत हो जाएगा, टैली होगा लेकिन आंसर विल बी रॉन्ग। टैली क्यों होगा? क्योंकि जितना डेबिट दिया उतना क्रेडिट दिया आपने।
तो टैली होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैली आपने गलत अमाउंट से कर दिया। क्यों? बिकॉज यू कैलकुलेटेड एवरीथिंग ऑन 20 लाख। इज दैट एक्सेप्टेड? 20 लाख पैसा आ रहा है क्या वापस तुम्हारा? 20 लाख इज ग्रॉस डेटर, उसमें से 20,000 तो ऑलरेडी डुबा के जा चुका है, बैड डेट्स है, उसको तो पकड़ने की जरूरत नहीं। मतलब 19,80,000। अब 1980 पे प्रोविजन किसका करोगे? आरडीडी का। आरडीडी माइनस करने के बाद पता है कि इतने अमाउंट आने का चांस है, तो उस पर आप डिस्काउंट देंगे डेटर को, क्योंकि ये आने वाली अमाउंट है। क्योंकि 1980 तो आने वाला नहीं है, 1980 माइनस 99,000 करना पड़ेगा। आप बोलेंगे दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड। आप क्या बोलेंगे? दिस इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब ये अमाउंट आनी बाकी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ऑन दिस रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 18,81,000 यू नीड टू चार्ज 2% डिस्काउंट ऑन डेटा। उस पर 2% डिस्काउंट ऑन डेटा आप चार्ज कीजिए, एंड दिस वे अराउंड इट इज 37,620। समझ में आ रहा बेटा? तो क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? फर्स्ट न्यू बैड डेट्स, देन new RDD, and then provision for discount on data. And what about the second effect on profit and loss account debit side? Show all these are losses on the profit and loss account debit side. इन सबको लॉस बोल के बताओ P&L के डेबिट में। अब जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, वैसे ही क्या आता है बेटा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मतलब your supplier is saying that you pay on time and you get a discount from us. You pay within the time, within the stipulated time, we will allow discount to you. अब सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? अब ये तो गेन है ना? तो पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर देख सकते हो बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 10, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। पहले किससे माइनस करो? क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स कहां पे है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है, क्योंकि लायबिलिटी है। और दूसरा इफेक्ट, अब जितना आप डिस्काउंट लेंगे द सेम विल बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट इट इज शोन ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। शो मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किससे? क्रेडिटर से, क्योंकि इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है? बिकॉज यू आर पेइंग ऑन टाइमली बेसिस, और स्टिपुलेटेड टाइम के पीरियड में आप दे रहे हो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज नथिंग बट अ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट है। जैसे आपने कस्टमर को दिया, सप्लायर आपको दे रहा है। आपने टाइम पे पैसा दिया, इसलिए 2%, 3%, 5% माइनस कर रहा है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या है? गूगल पे करते हैं ना, फटाक से गूगल पे किया, 21 रुपए डिस्काउंट आया, 2 रुपए आया, 3 रुपए आया। आजकल इंसान बस वही देखता है कि गूगल पे करने के बाद कितना आता है। बहुत बार तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है, बहुत बार तो बिना काम के सारे ऑफर्स आ जाते हैं, 10% ऑफ, 20% ऑफ, है ना? कैशबैक आया तो अच्छा लगता है क्योंकि कैश आया ना। सो दैट इज हाउ नथिंग बट द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। क्रेडिटर देंगे, पहला इफेक्ट कहां पे होगा? डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि आपके लिए गेन है। समझ में आया? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा एंड क्रेडिटर दोनों का। कैन आई से वन इज गेन फॉर यू, अनदर इज लॉस फॉर यू? कौन सा गेन है आपके लिए? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कौन सा लॉस है जो आप दे रहे? दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, डेबिट करो। और दूसरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आपका गेन है। एंड इनकम शुड इंक्रीज व्हेन इट इज डेबिटेड, और इनकम शुड बी डेबिटेड। इनकम शुड बी बेसिकली व्हाट? इनकम का रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल फॉर इनकम? देखा जाए तो किसी भी इनकम का रूल क्या होता है? इनकम कब बढ़ता है? when the income is bound to increase in the modern method of accounting. All liabilities and all income and gains should be credited when they are increasing. Am I correct? वो जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, हाँ या ना? And when liabilities and income and gains are decreasing, those should be debited. ऐसा रूल है। तो एंट्री देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके दो इफेक्ट, एक तो आप माइनस कीजिए कहां से? क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स कहां पे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दीजिए। कोई डाउट है बेटा इसमें? तो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव सीन इज न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आईडीडी अलॉन्ग विद ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड आईडीडी। आईडीडी को क्या बुलाते हैं? रिजर्व, एंड रिजर्व इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट इज अ लायबिलिटी। इसलिए रिजर्व का बैलेंस क्या रहेगा?
क्रेडिट बैलेंस रहेगा। रिजर्व को और क्या बोलते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, provision for doubtful debts and provision for bad and doubtful debts, same is called as reserve for bad debts, reserve for doubtful debts and reserve for bad and doubtful debts। कहीं पे लिख के रखना बेटा, वरना भूल जाता है इंसान। उसको आर ही सुनने की आदत होती है, रिजर्व ही सुनने की आदत होती है। प्रोविजन उसको लगता है नया कुछ आ गया, बट रिजर्व एंड प्रोविजन बोथ आर क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट, बोथ आर लायबिलिटीज, बोथ शुड हैव व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आगे चलते हैं। आपने अगर बैंक लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं? या बैंक आपको बोलने आएगी हर बार कि इंटरेस्ट देना भाई? इफ यू हैव टेकन अ लोन देन इट इज मैंडेटरी दैट यू मस्ट पे द इंटरेस्ट, यस और नो? इफ यू हैव टेकन अ लोन यू मस्ट पे द इंटरेस्ट एज वेल। अगर आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट भी देना ही पड़ेगा। Then in that case, how the interest is going to be paid? इंटरेस्ट किस तरह से देंगे, कहां से देंगे इंटरेस्ट? और जब इंटरेस्ट देंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इफ यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट, योर लायबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? मान लेते हैं हम 1 करोड़ का लोन लिया हमने। कितना लोन लिया? 1 करोड़ का। ये इंडस्ट्रियल लोन है, टर्म लोन है, उस पर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एचडीएफसी बैंक से लिया। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 14%। अब लोन 1 करोड़ का है, 14% के इंटरेस्ट से अमाउंट कितना आएगा? 1 करोड़ का 14%, 1 करोड़ का 14%। क्या कर रहे हो? 1 करोड़ का 10% मतलब 1 जीरो काट दिया तो 10 लाख हो गया, और 1 जीरो काट दिया तो 1 लाख हो गया, मतलब 14 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना हुआ? 14 लाख रुपए। आप लोन रीपे कर रहे क्या? नहीं, ये इंडस्ट्रियल लोन है, आप एक साथ पे करेंगे 10 साल बाद। हर साल क्या देना है? सिर्फ इंटरेस्ट। अब पहले साल इंटरेस्ट नहीं दिया तो लोन की अमाउंट 1 करोड़ रहेगी या 1 करोड़ 14 लाख हो जाएगी? लोन की अमाउंट कितनी होगी? 1 करोड़ 14 लाख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन तो आपने लिया, उसके साथ इंटरेस्ट अभी देना बाकी है। सो ऐड इंटरेस्ट इनटू द लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। किस पे ऐड करेंगे? बैंक लोन में। दूसरा इफेक्ट, इंटरेस्ट कहां से देंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट से देंगे। सो इट इज एन एक्सपेंडिचर, यस और नो? इट शुड बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। तो यहां पे लिखा नहीं है, तो एक एडजस्टमेंट हमें यहां पे ऐड करना है। कौन सा? दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। किसके साथ लिखूंगा मैं ये ऐसे भी चलता है। आई कैन राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड यहां पे ऐड कर देता हूं। दूसरा क्या है एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब आप बोल रहे होंगे सर दोनों को आप क्लब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। क्यों सेम है? कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, लोन इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, लोन इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। दोनों में क्या पे करना है बेटा? इंटरेस्ट पे करना है। इज इट मैंडेटरी टू पे? यस। कैपिटल पे भी मैंडेटरी है क्या? यस। क्यों? Because law says that in the eyes of law, business and owner are two separate legal entities. Hence, whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner. तो आपने कैपिटल दिया, रिस्क लिया, मतलब आपको बिजनेस क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। किस पे? कैपिटल पे। सोल ट्रेडिंग में ऐसा होता है, पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट पे भी आपको लोन, कैपिटल पे भी आपको क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है। On capital as well, you are liable to get interest as far as any kind of sole trading or partnership firm is concerned. तो दो इफेक्ट क्या रहेंगे किसके? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के। फर्स्ट, ऐड इनटू बैंक लोन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, और दूसरा इफेक्ट, शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या रहेंगे? ऐड इनटू कैपिटल बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। फर्क ये है कि वो कैपिटल में ऐड हो रहा है, ये बैंक लोन में ऐड हो रहा है, लेकिन दोनों कहां पे है? बोथ आर ऑन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। देखा जाए तो दोनों का प्लेस क्या है? दोनों का प्लेस बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड है। हाँ या ना? कैपिटल भी लायबिलिटी में है और बैंक लोन भी लायबिलिटी में है। सो ऐड इनटू बैंक लोन और कैपिटल बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड एंड शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। दैट इज इफेक्ट नंबर 2. Getting this? Any problem on interest on loan and interest on capital? Can I say it is सिमिलर एडजस्टमेंट? यस और नो? सिमिलर है या नहीं है? अब अगला इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देखिए बेटा ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और व्हाट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैंक लोन अकाउंट। ये इंटरेस्ट दे रहे आप, हाँ या ना, या तो कैपिटल पे दे रहे या बैंक लोन के दे रहे, एंड इट इज एन एक्सपेंडिचर एंड शुड बी शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसलिए आप इंटरेस्ट यहां पे बताएंगे। अब ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, कैन आई से दैट फॉर बिजनेस इट इज एन एसेट, क्योंकि बिजनेस को जो पैसा ओनर लेके गया पर्सनल यूज के लिए बिजनेस को वापस मिलना चाहिए, हाँ या ना। ड्राइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल। अब ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ओनर को, मतलब बोल रहे कि भाई तुमने जो पैसा लिया था उस पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग पे तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने पैसा विड्रॉ किया ओनर बोल के बिजनेस से, कितना 10 लाख रुपए, और अभी बिजनेस बोल रहा है कि उस पर 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने ड्राइंग किया और तुमने पैसा टाइम पे नहीं दिया, तो तुम्हें आने वाले 1 साल के लिए पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 10% से। तो 10 लाख पे ओनर बिजनेस को कितना दे रहा है? 1 लाख दे रहा है। अब बिजनेस के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट हुआ, एम आई राइट? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एन एक्सपेंस, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम। क्यों? बिकॉज इट इज रिसीव्ड बाय बिजनेस एंड द फॉर्मर वन इज पेड बाय बिजनेस। इसके पहले वाला बिजनेस पे कर रहा है बैंक को या ओनर को, और इस ड्राइंग पे का इंटरेस्ट बिजनेस रिसीव कर रहा है, सो इट इज ए इनकम। सो फर्स्ट इफेक्ट, शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, ऐड इनटू ड्राइंग। वैसे भी ड्राइंग में ऐड होकर ड्राइंग का क्या होने वाला है, ड्राइंग तो कैपिटल से माइनस ही होने वाली है, बराबर है कि नहीं बेटा, हाँ या ना? So what is the first effect? Show it on profit and loss account credit side. And what is the second effect? Add it into drawing balance sheet liability side. ड्राइंग में ऐड करो, ऑटोमेटिकली कैपिटल से क्या होना है, माइनस ही होना है। दिए गए दोनों इफेक्ट सेम, देख लीजिए। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू ड्राइंग और लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग में ऐड करना मतलब कैपिटल से माइनस ही करना है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ड्राइंग अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, ड्राइंग कैपिटल से माइनस ही करते हैं, am I right? So two effects, show it on profit and loss account credit side as it is income for the business, and second effect, add into drawing or deduct it from capital. कितने एडजस्टमेंट देखे अभी तक हमने? फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, सेकेंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, थर्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे सबसे ज्यादा टाइम किसने खाया? बैक डेट्स एंड आरडीडी। बैक डेट्स एंड आरडीडी, क्योंकि हमें समझना पड़ा कि बैक डेट्स क्या है और आरडीडी क्या है, क्या फर्क है दोनों में। बैक डेट्स इज अ लॉस एंड आरडीडी इज एन एंटिसिपेटेड लॉस, बराबर है क्या बेटा? तो वो फर्क हमने देखा। उसी के साथ हमने क्या देखा, ट्रायल बैलेंस में जो बैक डेट्स और आरडीडी दिया है दैट इज ओल्ड, और एडजस्टमेंट में जो बैक डेट्स और आरडीडी दिया है दैट इज न्यू, एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस देयर। ये देखा था हमने, आया ना? और हमने पूरा सीक्वेंस देखा कि जब एक ही क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दिया है, देन हाउ इट इज डिडक्टेड। फर्स्ट न्यू बैड डेट्स, देन न्यू आरडीडी, एंड देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। रिमेनिंग एडजस्टमेंट फॉर द डे दो है, एक ही है लगभग, दोनों का इफेक्ट सेम है। और एक बताता हूं इसको, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। कैन आई से इट इज अ ड्राइंग अगेन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन नीचे का ड्राइंग कैश में था, ये कैसे है? गुड्स लेके गए। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आपका आइसक्रीम का पार्लर है, लेकिन पूरे समर में रोज आप 10 लीटर आइसक्रीम घर पे लेके जाते हो, रोज रात को 10 लीटर घर पे, रोज दोपहर में 10 लीटर घर पे। दिस इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब बिजनेस के लिए तो ये क्या हुआ, सिंपली ड्राइंग हुआ, है ना? बिजनेस क्या बोलेगा, या तो 10 लीटर के पैसे दे दो, 10 लीटर के पैसे दे दो, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ सेल, और व्हाट इज द अनदर ट्रीटमेंट, डिडक्ट इट एज ड्राइंग। या तो पैसे देना, तो ड्राइंग नहीं बताने की जरूरत है, या तो फिर ड्राइंग बोल के माइनस करने दो, एज सिंपल एज दैट। सो गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? Add into drawing. Add into drawing, because drawing can be in the form of cash or goods.
कैश भी हुआ तो भी ड्राइंग है, गुड्स हुआ तो भी ड्राइंग है, तो ड्राइंग में ऐड करो, दैट इज इफेक्ट नंबर 1. व्हाट इज इफेक्ट नंबर 2? डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि आपने क्या दिया है पर्सनल यूज के लिए, आपने क्या दिया, व्हाट यू हैव गिवन इज ड्राइंग. सो डिडक्ट फ्रॉम ड्राइंग, sorry, add into drawing and deduct from capital, that is first effect. Second effect, deduct from purchases trading account debit side. Can I say it is a kind of sell but where money will not be received? So either you can show on trading account credit side as well, buy goods distributed as free sample or buy goods withdrawn by the owner for personal use. क्योंकि फ्री सैंपल भी दिया तो पैसा नहीं आता और ओनर ने विड्रॉ किया तो भी पैसा नहीं आता, उसको ड्राइंग बोल के बताओ. दूसरा इफेक्ट परचेसेस से माइनस करो. परचेसेस से क्यों माइनस कर रहे? क्योंकि हमने गुड्स विड्रॉ किए और गुड्स आए कहां से, तो परचेसेस से आए. सो इफेक्ट इज वेरी क्लियर, डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और शो इट ऑन trading account credit side, that is first effect. Second effect, add into drawing and then deduct from capital. Very simple. समझ में आया? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, समझ में आया बेटा? और जर्नल एंट्री क्या दिया उसका, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेसेस अकाउंट, पहला एंट्री. और दूसरा एंट्री प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग इससे क्या होगा, बढ़ेगा. ड्रॉइंग इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज व्हाट इट इज गिवन. जस्ट अ मिनट, I think I can hear somebody's noise here. Aditya, if you can unmute yourself. Aditya, are you there? Can you hear me, Aditya? आप मुझे सुन सकते हैं क्या आदित्य? It's okay. Rest. Any doubt till here बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? So goods withdrawn by proprietor for personal use. What are the two effects? Deduct from purchases or show it on trading account credit side. Second effect, add into drawing and deduct from capital. Simple. And last, goods distributed as free sample. इसी के साथ और एक चीज आपको बताता हूं बेटा, और एक एडजस्टमेंट इसके साथ मैं आपको बताता हूं. goods distributed as free sample and goods lost by fire. goods lost by fire or theft or इन ट्रांजिट. अगर आपके गुड्स जल गए, चोरी हो गए या जर्नी में खराब हो गए, तो जल गए, चोरी हो गए या जर्नी में खराब हो गए, तो इन ऑल दीज केसेस कैन आई से इट इज लॉस फॉर यू. गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट एंड गुड्स लॉस्ट इन जर्नी और ट्रांजिट, कैन आई से ऑल दीज आर लॉसेस फॉर यू, यस और नो? सो फर्स्ट इफेक्ट, शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज इट इज अ लॉस. सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, क्योंकि गुड्स आए कहां से, तो परचेसेस से आए. सो डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और शो इट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एज बाय गुड्स लॉस बाय फायर, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. सेकेंड इफेक्ट, शो इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट. एम आई करेक्ट? और ऊपर क्या दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. कैन आई से इट इज एडवर्टाइजिंग? फ्री सैंपल देना मतलब एक तरह का सेल है, लेकिन पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं. ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि कल प्रोडक्ट लोग ले, आपका खरीदे और आपको ज्यादा से ज्यादा सेल हो. सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड or show it on trading account credit side. Second effect, show it as advertising in profit and loss account debit side. इसको एडवर्टाइजिंग बोल के बताओ P&L के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट परचेसेस से माइनस करो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बताओ. सो ऑल दीज आर द एडजस्टमेंट्स एंड वी आर डन. Same effects are given for goods lost by fire, goods lost in theft or goods lost in transit. I hope you are getting all the adjustments. So first we discussed today, that is provision for discount on debtor. Then we discussed provision for discount on creditor. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बेटा? Interest on bank loan, interest on capital, then interest on drawing, and finally we discussed goods withdrawn by the owner for personal use, goods distributed as free sample, goods lost by fire or theft or in transit. Any doubt into this? Your doubts are most welcome, my dear. बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? Do remember, every adjustment should have how many effects? 2 effects. कोई adjustment में डाउट है बेटा तो जरूर बोलिए. Any doubt? Go through the adjustment and let me know. Yes, Saidnya, Aditya, Isha, Saurabh, Ayush. कोई डाउट है?
कोई डाउट है बेटा ये एडजस्टमेंट्स में? एवरीबडी इज क्लियर? Yes, sir. एवरीबडी इज क्लियर स्टूडेंट्स हियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए, यू कैन कॉपी दिस एज इट इज. आप इसको कॉपी कीजिए बेटा एज इट इज.